ایک ایسی بستی جہاں 1,20,000 سے بھی زیادہ لوگ رہتے تھے، اور وہ سب کے سب ایک ہی دن ایک ہی ساتھ ایمان لے آئے۔ یہ کوئی عام قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اس بستی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک ہی دن 1,20,000 لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے فوراً ایمان لے آئے، اور یہ بھی جانیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے، اور انہوں نے کون سی دعا پڑھی جس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر نکالا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں عراق کی ایک بستی نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جہاں تقریباً 1,20,000 لوگ رہتے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سب کے سب شرک اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، نہ اللہ کو مانتے، نہ کسی نبی کی بات سنتے۔ یونس علیہ السلام نے سال ہر سال ان لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، محبت اور صبر کے ساتھ سمجھاتے رہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت مت کرو۔ لیکن بستی کے لوگ اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے، کچھ ہنسی مذاق کرتے، کچھ غصے سے ٹال دیتے، اور کچھ کہتے یہ کیسا پیغام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سالوں تک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، آپ کو جھٹلاتے رہے۔ جب ظلم اور انکار حد سے بڑھ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں صاف صاف خبردار کیا، اے لوگو، اگر تم ایمان نہ لائے تو 7 دن کے بعد اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ پاک کی طرف سے ان لوگوں کو صرف 7 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ 7 دن کے اندر وہ ایمان لے آئے، ورنہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے گا۔ یونس علیہ السلام نے یہ اعلان کر کے غصے میں آ کر بستی سے نکل گئے، حالانکہ اللہ پاک نے انہیں اس بستی سے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ سورہ انبیاء میں اللہ پاک فرماتا ہے، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اسی دوران اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی علامتیں اس بستی پر ظاہر ہونے لگی۔ آسمان پر ایک کالا بادل چھا گیا، اس بادل میں آگ کے شعلے لپکتے دکھائی دینے لگے، روشنی غائب ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے جب وہ منظر دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے، اور وہ جانتے تھے کہ پچھلی قومیں، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط علیہ السلام کی قوم کس طرح اپنے نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک ہوئی، اب ہم پر بھی ویسا ہی عذاب آنے والا ہے۔ قوم کے سردار لوگ چیخ کر بولنے لگے، جس طرح عذاب پہلے لوگوں پر آیا ہے اب ہم پر بھی آئے گا، جلدی کرو، سب کے سب توبہ کرو۔ یونس سچ کہہ رہے تھے، اگر ہم نے فوراً اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تو ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ پوری بستی پر دہشت طاری ہو گئی، لوگ رونے لگے، عورتیں بچوں کو سینے سے لگا کر دہاڑے مارنے لگی، مرد ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر کانپنے لگے۔ وہ قوم جو کل تک انکار کر رہی تھی اب یقین کر چکی تھی کہ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، مرد، عورتیں، بچے سب میدان میں جمع ہو گئے۔ جانوروں کو الگ باندھ دیا تاکہ ان کی رونے کی آوازیں بھی آسمان تک پہنچے۔ پھر سب نے مل کر رونا شروع کیا، بچوں کی چیخیں، عورتوں کی سسکیاں، مردوں کے آنسو سب آسمان میں گونجنے لگے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر فریاد کرنے لگے، اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے تیرے نبی کو جھٹلایا، ہمیں معاف کر دے، اب ہم کبھی بھی شرک اور نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ عمل 3 دن تک چلتا رہا، ہر کوئی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آخرکار اللہ پاک نے ان پر رحم فرمایا اور ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ یہ اجتماعی توبہ اتنی سچی اور خالص تھی کہ فوراً عرش الہی تک ان کی فریاد پہنچ گئی، رحمت خدا جوش میں آئی، عذاب کے بادل آہستہ آہستہ چھٹنے لگے، آگ کے شعلے بجھ گئے، آسمان پھر سے روشن ہو گیا۔ آخرکار اللہ پاک نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب کو ان سے دور کر دیا۔ دوستو، ان پوری قوم عذاب سے بچ گئی،
कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि किसी कौम के लोग जब इज्तिमाई तौबा करे तो अल्लाह उन पर रहम फरमाता है। इज्तिमाई तौबा करने की वजह से अल्लाह पाक ने अज़ाब को उनसे दूर कर दिया और उन्हें माफ़ कर दिया। सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम है जो कि पूरी की पूरी कौम एक साथ ईमान ले आई। बाकी सारे नबियों की कौम में से कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ ने इनकार कर दिया। यह एक अजीम मुअजिज़ा था। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ अज़ाब की अलामत देखकर ईमान ले आई। अल्लाह ने उनसे अज़ाब को दूर कर दिया। यह अल्लाह की कुदरत और रहमत का सबूत है। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। एक साथ 1,20,000 लोग ईमान ले आए, लेकिन उस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान मौजूद नहीं थे। आप गुस्से में आकर बस्ती से निकल गए थे। यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में यह ख्याल था कि ये कौम कभी भी ईमान नहीं लाएगी, अब उन पर अज़ाब नाज़िल होकर रहेगा। अल्लाह ने आपको सिर्फ 7 दिन की मोहलत देने का हुक्म दिया था, लेकिन आपको बस्ती छोड़ने की इजाज़त नहीं दी थी। यही वह जल्दबाजी थी जिस पर बाद में यूनुस अलैहिस्सलाम को नदामत हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी कौम ईमान ले आई है। वह गुस्से में बस्ती छोड़कर समुंदर की तरफ चले गए थे। वहाँ एक कश्ती खड़ी थी जो रवाना होने वाली थी। आप उस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती समुंदर के बीच पहुँचने ही वाली थी कि अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गई। समुंदर की लहरें तेज हो गई, हवा जोरदार चलने लगी, कश्ती डोलने लगी। कश्ती वाले एक दूसरे से घबरा कर कहने लगे, अगर कश्ती का बोझ कम न हुआ तो ये समुंदर हमें निगल लेगा। सब ने अपना अपना सामान उठाकर समुंदर में फेंक दिया। इसके बाद कश्ती पहले से हल्की हुई, मगर तूफान कम नहीं हुआ। फिर सब ने ये फैसला किया कि कूड़ा अंदाजी की जाए। हर किसी का नाम एक पर्ची पर लिखा गया और चुनाव हुआ। पहले पर्ची पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोग बोले, ये तो अल्लाह के नबी है, इन्हें छोड़ दो। दोबारा कूड़ा अंदाजी की गई। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर तीसरी बार कूड़ा अंदाजी की गई। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। आखिरकार मजबूर होकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में डाल दिया गया। उसी लम्हे अल्लाह ने एक अज़ीमुश्शान मछली को हुक्म दिया, यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले, लेकिन उनको किसी तरह का कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। यूं वह समुंदर की तह में मछली के पेट के अंधेरे में पहुंच गए। चारों तरफ अंधेरा था, न रोशनी न कोई रास्ता। रात का अंधेरा, समुंदर की गहराई का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। उन्हें एहसास हुआ कि ये सब उनकी जल्दबाजी की वजह से हुआ है। वहाँ हर मछली, हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह कर रही थी। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। उस अंधेरे में, समुंदर की गहराई में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिम था। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते रहे। इसके बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने उनकी पुकार को सुन ली और उसे गम से निजात दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह गम से बचा लिया करते हैं। मछली ने उन्हें समुंदर के किनारे पर डाल दिया और वह चली गई। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, फिर हमने उन्हें एक चटियल मैदान में डाल दिया और वहाँ वह बीमार थे, और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने उनके पास एक खास दरख्त उगा दिया। इस दरख्त के पत्ते उन्हें धूप से बचाते। फिर अल्लाह पाक ने एक दूध देने वाली बकरी भेजी जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब आ जाती, जिससे वह आसानी से दूध पी लेते। दूध पीने की वजह से वह आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त होने लगे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल सेहतयाब हो गए तो अल्लाह पाक ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी कौम के पास वापस जाएं। जब वो वापस गए तो देखा कि उनकी पूरी कौम ईमान ला चुकी है और सब के सब अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन चुके हैं। ये देख कर यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल खुशी और सुकून से भर गया। दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह हर गुनाह को माफ़ कर देता है।
शर्त यह है कि हम सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करें। दूसरा जो सबक मिलता है वो ये है कि नेकी का काम, दावत देना या हक की बात कहना कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे लोग सुने या ना सुने। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। तीसरा जो सबक मिलता है वो ये है कि गुस्सा और जल्दबाजी इंसान को मुश्किल में डाल देती है। जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में अपनी कौम को छोड़ दिया, बाद में उन्हें इस जल्दबाजी और गुस्से का पछतावा हुआ। चौथा जो सबक मिलता है वो ये है कि इज्तिमाई तौबा हमेशा अल्लाह की रहमत को खींच लाती है। पांचवा जो सबक मिलता है वो ये है कि मुश्किल वक्त में दुआ और तस्बीह करने से अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है। जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। सबसे आखिरी जो सबक मिलता है वो ये है कि अल्लाह हमें हर मुश्किल से निकाल सकता है और हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। यूनुस अलैहिस्सलाम गहरे समुद्र में मछली की पेट के अंदर थे। उन्होंने वहाँ से अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें उस मुसीबत से निकाल दिया। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में इस दुआ को नहीं पढ़ते तो वो मछली के पेट में ही रहते। दोस्तों, हम सबको चाहिए कि जब भी हम पर कोई आजमाइश या कोई मुश्किल पेश आए तो फौरन इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दे। इस दुआ को पढ़ने से हर मुश्किल दूर हो जाती है। दोस्तों, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपनी ज़िंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपको हर मुसीबत से निकाल सकता है। ये था यूनुस अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। यूनुस अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि चाहे हमसे कितना ही गलती क्यों न हो जाए, अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस वाक़या से आपको क्या सीख मिली? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा।